Welcome to all of you students in the online class of biology, human health and disease. In previous video, I have discussed different types of immunity in human body. But all of you, if you are sincere to be a doctor and qualify in NEET exam with more than 700 marks, please come with me. I will teach you whole of the biology in a short duration, perfectly and correctly. Students, in previous lecture, without wasting any time, please come. In previous lecture, I have discussed immunity, and all of you are well aware about types of immunity: innate immunity and acquired immunity. Those students who are not aware about acquired and inborn immunity, please go to the previous lecture and once see with concentration, then all of the contents about that immunity, innate and acquired, will be clear surely. But today I am going to discuss the various components. Be serious. अरे इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी. So students, please come and see the concepts of different components related with adaptive immunity. Look, components of adaptive immunity. Adaptive means acquired immunity. What are the different components of this adaptive immunity? I will discuss in a fine way. This component of acquired immunity include two basic components. The first component, this adaptive immunity include the first component as antibody, that is simply known as AMIS. Please read this term with me, AMIS. And again, the second component included in this adaptive immunity is CMIS. There are two components of adaptive immunity, AMIS and CMIS. Adaptive immunity are those immunity which is not present in a body of a person from their birth. It is acquired by a person after the birth during lifetime by fighting with an antigen. CMIS, look this, the full form of this CMIS is cell mediated immune system. Okay, C cell, M mediated, I immune, S system, cell mediated immune system. But here AMIS, it means antibody mediated immune system. Antibody mediated immune system. Look this phase, antibody mediated immune system. The full form of AMIS is antibody
mediated immune system. Students, you must remember that this antibody mediated immune system is also known as क्या आंसर है ह्यूमोरल HUMORL ह्यूमोरल immunity. If anytime, anybody, anywhere, anyone can ask what do you mean by humoral immunity, then you give answer generally that this is the antibody mediated immune system. Why this AMIS is called humoral immunity? Because we know that this antibody is present in the blood. That's why this type of immunity is known as humoral immunity. क्लियर है? क्यों इसको ह्यूमोरल कहते हैं? क्योंकि जिसके द्वारा ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी में रेगुलेट की जाएगी वह इम्यूनिटी क्या होगी? एंटीबॉडी की होगी. Look the detail about this AMIS and CMIS. वन बाई वन हम दोनों को अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में टुडे आई विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द कंपोनेंट्स, all the objects, all the events related with antibody mediated immune system. First of all, you start the study AMIS with the immune cells. Student, be concentrate only on this AMIS or in general humoral immunity. In next lecture I will discuss CMIS. Today I will not discuss this. In next lecture. So all of you please focus only on this antibody mediated immune system, and with starting this AMIS you must know the different types of immune cells. And the immune cells are basically which regulate AMIS is B lymphocyte. The immune cell which regulate AMIS is known as B lymphocyte. In previous lecture I have explained that these B lymphocytes are formed in bone marrow, but in bone marrow this lymphocyte is prematured, and after bone marrow when this lymphocyte comes into the blood and moves into the submucosa of our gut, where this lymphocyte interact with a particular antigen and then it change into the mature B lymphocyte. Their processing, their maturation is completed in the submucosa layer of gut. आ रही है बात समझ में कि बोन मैरो में तो बनता है, लेकिन बोन मैरो से ये जब सबम्यूकोसा में जाता है तो वहाँ पर ये मेच्योर होता है और प्रोसेस होता है B lymphocyte. And second things, this B lymphocyte produce, please see, this B lymphocyte produce antibody, and this antibody released in blood, where it present in blood, it is present, and that's why this is known as humoral antibody. In simply you can say that HAB. What does it means? Humoral antibody, HAB. The immune cell, again I am coming to original topic, AMIS, antibody mediated immune system. This antibody immune mediated immune system
is the component, first component of the adaptive immunity. पहला कंपोनेंट है किसका? एडाप्टिव इम्यूनिटी का। और इस एडाप्टिव इम्यूनिटी के फर्स्ट कंपोनेंट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का दूसरा नाम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी है। और इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी का इम्यून सेल्स का नाम क्या है? दैट इज बी लिम्फोसाइट। अब अगले स्टेप में थोड़ा बढ़ जाइए ना। क्या ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट होगा, इसलिए इस एंटीबॉडी को ह्यूमोरल एंटीबॉडी HAB कहा जाता है। अब इसको एंटीबॉडी में जाने से पहले मैं आपको पहले बी लिम्फोसाइट के एक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं, जो बहुत ज़रूरी है आप इसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। फिर से रिपीट करते हैं, हम आज के लेक्चर में सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं? AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसकी इम्यून सेल का नाम क्या है? बी लिम्फोसाइट। टी मत बोल देना, टी वहां पर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप, सपोज दिस इज ए बी लिम्फोसाइट, दिस इज द बी लिम्फोसाइट, एंड बी लिम्फोसाइट कहाँ गया? तो आपको यहां याद रखना है कि ये बी लिम्फोसाइट सब म्यूकोसा में गया। कहाँ गया? सब म्यूकोसा में, MUCOSA, यहां चला गया। सब म्यूकोसा में इसको क्या मिला? तो सब म्यूकोसा में एक प्रकार का एंटीजन मिला। सब म्यूकोसा में एक प्रकार का एंटीजन मिला। इसको मान लीजिए X टाइप एंटीजन है, X टाइप एंटीजन है। यहां से समझिएगा कि बी लिम्फोसाइट जो AMIS का कंपोनेंट है, ये बी लिम्फोसाइट सब म्यूकोसा में जब पहुंचेगा तो सब म्यूकोसा में एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही इसको इंटरेक्ट करेगा तो सबसे पहले ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा। क्या करेगा? रिकॉग्नाइज किसको? AG मतलब एंटीजन, AB मीन्स एंटीबॉडी, AG मीन्स एंटीजन, AG मीन्स एंटीजन, AB मीन्स एंटीबॉडी। तो ये बी लिम्फोसाइट सब म्यूकोसा में जब गया तो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट किया और उसे क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद अब ये ध्यान दीजिएगा, इसको रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये हुआ कि ये जो लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट था, आप देखो ध्यान से, ये बी लिम्फोसाइट ऐसा, अब ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक फॉर X एंटीजन। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि जिस एंटीजन से ये इंटरेक्ट करके उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद से अब यही बी लिम्फोसाइट जो पहले स्पेसिफिक नहीं था, अब इस एंटीजन से इंटरेक्ट करने के बाद इस X एंटीजन के प्रति क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। अब यहां से एक स्टेप है कि तुरंत इसके बाद ये मल्टीपल डिवीजन में चला जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा? मल्टीपल डिवीजन में चला जाएगा, मीन्स इस बी लिम्फोसाइट में डिवीजन शुरू हो जाएगा। ये दिस बी लिम्फोसाइट स्टार्ट टू डिवाइड, और जो भी ये सेल्स बनेंगी दे आर द क्लोन्स ऑफ सेल्स, क्लोन्स ऑफ सेल्स मीन्स ये जो सेल्स बनी ये सब X एंटीजन को किल करने के लिए एडाप्टेड हैं। ये जो X लिम्फोसाइट है, यह जब इसको रिकॉग्नाइज कर गया एंटीजन को, तब ये प्रोलिफरेट करके नंबर ऑफ सेल्स को बनाएगा। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सब की सब X एंटीजन के प्रति क्या है? स्पेसिफिक, बिकॉज दे आर द क्लोन ऑफ सेल्स, और इसको क्लोनल सिलेक्शन भी कहा जाता है। अब आइए देखिए इसको, इसमें से हम इसकी दो कैटेगरी बता देते हैं। देखिए अब आप रिकॉग्नाइज करने के बाद से एक इसमें से, एक मीन्स वन ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है इसका, किसी को ले लीजिएगा, ये इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा।
इफेक्टर सेल में, और दूसरा जो होगा, दूसरा मीन्स जो बचा हुआ है वह मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेमोरी सेल में हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि AMIS को चलाने वाली इम्यून सेल्स का नाम बी लिम्फोसाइट है। ये बी लिम्फोसाइट जब सब म्यूकोसा गट में पहुंचा होगा तो वहां पर ये किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ इंटरेक्ट किया होगा। जब ये इस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर गया होगा तो फिर वह उसको रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि ये एक्स एंटीजन है, मीन्स वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है। रिकॉग्नाइज करने के बाद से ये स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट, यही है बी लिम्फोसाइट, अब प्रोलिफरेट करके अपने नंबर को इंक्रीज करेगा और ये कहलाएगी क्लोन्स ऑफ सेल्स। मतलब जितनी भी इससे सेल्स बनेंगी सब की सब एक्स के लिए क्या है? स्पेसिफिक है। अब इसमें से डिफरेंशिएशन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? तो इसको आप ऐसे मान लेना कि ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट हुआ? तो इसमें से कुछ सेल, आप देखो यहां पर ध्यान से, 4 है ना, तो दो सेल इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो गई और बाकी 2 कैसी हो गई? मेमोरी सेल हो गई। इफेक्टर का मतलब इमीडिएट काम करने के लिए और मेमोरी का मतलब फ्यूचर में काम करने के लिए। तो ये दोनों क्या एक्स एंटीजन के लिए नहीं बनी है? तो आंसर है एक्स के लिए तो स्पेसिफिक दोनों ही हैं। अंतर बस ये है कि एक अभी तुरंत काम करेगा और एक फ्यूचर के लिए रख दिया जाएगा। जो इमीडिएटली वर्क करेगा उसका नाम क्या होगा? इफेक्टर, और जो फ्यूचर में फिर एक्स एंटीजन के री इन्फेक्शन पर एक्ट करेगा उसका नाम क्या होगा? मेमोरी सेल्स। आइए, इफेक्टर सेल। एक्चुअली दिस इफेक्टर सेल, अब ये जो इफेक्टर सेल है ना, ये भी चेंज हो जाएगी एक पर्टिकुलर सेल में, जिसको हम क्या बोलेंगे? अब देखिए, दिस वन इज द प्लाज्मा सेल। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? प्लाज्मा सेल। क्लियर हुआ? एंड नाउ दिस प्लाज्मा सेल इज स्टार्ट टू सीक्रेट, और ये प्लाज्मा सेल अब सीक्रेशन करेगी। सीक्रेट, सीक्रेट क्या सीक्रेट करेगी भाई? तो सीक्रेट उसी स्ट्रक्चर को जिसके बारे में हमें जानना है डिटेल में, और उसका नाम है एंटीबॉडीज। ये इस एंटीबॉडीज को सीक्रेट करेगा, एंटीबॉडी। इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारा जो अंदर की तरफ डाउट है, कंफ्यूजन है, वो अपने आप दूर हो जाता है कि कैसे बी लिम्फोसाइट इस एंटीबॉडीज़ को बनाता है। तो एक्चुअल में जो बी लिम्फोसाइट इस एंटीबॉडीज़ को बनाता है उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा सेल होता है। और प्लाज्मा सेल क्या होती है? इफेक्टर सेल्स होती हैं। कैसे ये प्रोसेस होती है? तो एक प्रोसेस होती है क्लोनल सिलेक्शन की, और उसी क्लोनल सिलेक्शन से ये सब कुछ आप समझ पाएंगे। क्या भाई? तो जब कभी भी बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनेगा तो आफ्टर बोन मैरो दिस बी लिम्फोसाइट मीन्स प्रीमेच्योर बी लिम्फोसाइट migrate into the submucosa, and in submucosa this B lymphocyte interact with a particular antigen like X type antigen. Here this premature B lymphocyte recognize the antigen and becomes functional. After interaction it becomes functional, and this functional B lymphocyte is now specific for that X type antigen through which it interacted. Come this to another point. This specific B lymphocyte now start to the proliferation, start to rapid division, and it form the clone of cells by a process of clonal selection. In these clone of cells, some cells transform into effector cell and some changes into the memory cells. The effector cell immediately work to kill this antigen,
and memory cell remain in the body for the protection if the same antigen infect the body in future. Now come to the another points. This effector cell actually converted into the plasma cell, and this plasma cell is start to secrete rapid secretion, approx 2000 molecules of antibodies per second. Their secretion is very rapid. Once it change into the plasma cell, then they secrete these antibodies at a high rate. The answer is 2000 molecules of these antibodies per second. And now this antibody kill this antigen, this antibody kill this antigen to remove the infections, and this memory cell for killing this antigen remain in the blood, remain in the body for future protection. तो ये कॉन्सेप्ट है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का, कि इस एंटीबॉडी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंटीबॉडीज एक्चुअली है क्या, तो प्लाज्मा सेल से सीक्रेट होने वाला प्रोटीन है, और जो प्रोटीन किसी एंटीबॉडी को, एंटीजन को किल करने के लिए यूज होता है। ओके, ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं अब क्या करूँगा, इसको हटा करके सीधे मैं एंटीजन को किल करने वाली इस एंटीबॉडीज़ के फीचर पर आ जाऊँगा, क्योंकि एक्चुअल में बताना यही है एंटीबॉडीज़ के बारे में। और कौन बनाता है, तो बी लिम्फोसाइट, और इस प्रोसेस के थ्रू बनाता है। डायरेक्ट कौन सिक्रीशन करेगा, तो सिक्रीशन करेगा प्लाज्मा सेल। ओके, इसको पूरा मैं मिटा देता हूँ। चलिए देखिए, आपको इन सब स्टेप्स को एकदम बिल्कुल आराम से समझ लेना है। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगा, बिकॉज द ड्रीम फॉर बिकमिंग ए डॉक्टर इज सो ईजी इफ यू हैव लर्नड ऑल द बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअली, एंड एट दैट टाइम द selection of correct answer from the given options will be easy. Now come to the specification. This AMIS, antibody mediated immune system, is also known as humoral immunity, is mediated by antibody. Now I am going to discuss this antibody. Students, this antibody is also known as what? Known as immunoglobulin. Immunoglobulin, correctly known as, yes, in short it is known as IG. IG means immunoglobulin. But before further movement, here one sentence is very important, that all the just समझिएगा, immunoglobulin are basically made up of a single protein structure that is known as globulin, and they are specialized for immune system. All the immunoglobulins are antibodies, but all the antibodies are not immunoglobulin. You must remember it. All the immunoglobulins are antibodies, बट ऑल द एंटीबॉडीज आर नॉट इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटीबॉडी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, लुक दिस स्ट्रक्चर। दिस इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ
एंटीबॉडीज, just see for 1 minute this structure. The structure is given in your NCERT book, from where you can draw the diagram. This is the first peptide chain, first type of peptide chain present in antibodies, that is immunoglobulin. Look this structure only. Now come to the second point. The second chain is also present in association with first chain. This is the second chain of antibodies. The second chain always associated with first chain, bind with first chain by disulfide bond. I will explain it, but first you see the diagram. What is the structure of antibodies? This basal end, this is the basal end of antibody, is COO minus nature, COO minus nature, because this is the amino acid. और इसका जब टर्मिनल पार्ट चलेंगे तो ये होता है एन टर्मिनल NH3 प्लस NH3 प्लस, यहाँ भी वही चीज़ आएगा NH3 प्लस NH3 प्लस। अब एक पॉइंट और देखिए, ये दोनों आप समझिएगा, ये चेन और ये चेन आपस में जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। SS का मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये चेन और ये चेन भी आपस में जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। यहाँ भी सल्फाइड बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। अब नाम की तरफ चलते हैं हम लोग। आप नाम देखो, ये चेन हेवी चेन है, HEAVY, हेवी चेन। और हेवी चेन की संख्या कितनी है? 1 and 1, 2 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से। और आप इसको देखिए, ये इस वाले को, ये तो छोटा आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइट चेन, LIGHT, लाइट चेन। और लाइट चेन की भी संख्या कितनी है? तो हेवी चेन की संख्या, हेवी चेन 1 और 1 2 है, तो लाइट चेन भी 1 and 1 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? आंसर है इसको L2 बोलेंगे। 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जरा इस स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ से इसको मैं आगे कर देता हूँ, यहाँ से ऊपर इधर और इसके नीचे ये जो चेन, ये जगह आप देख रहे हैं ना, ये वाली जगह, इसको अलग करके मैं दिखाऊँ आपको। ये वाली जगह, खाली जो जगह देख रहे हैं, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। 1 by 1 मैं सब आपको समझाऊंगा, बट आप स्ट्रक्चर समझिएगा। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रीजन, ये वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन। क्यों होता है मैं बता दूंगा आपको। फिर ये रीजन नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब कांस्टेंट रीजन होते हैं, दे आर कांस्टेंट रीजन। अगर इसको मैं थोड़ा अलग करके बना दूं, इस जगह को, एंटीजन बाइंडिंग साइट को, तो आप देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। एक इसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से बना रहा हूं, थोड़ा बाइंडिंग दिखाने के लिए। एक पार्ट देखिए, जब कोई भी एंटीजन यहाँ पर आएगा
तो देखिए एंटीजन में कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ये क्या है? एंटीजन। एंटीजन, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर वही है एंटीजन बाइंडिंग साइट का। वेरिएबल रीजन, इसका नाम क्या है? वेरिएबल रीजन। और इसका नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंड दिस एंटीबॉडी इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन IG। स्टूडेंट, प्लीज सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज, कि एंटीबॉडीज का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। और आप इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आप सबको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एंटीबॉडीज पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन है। आप डायग्राम को बस जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम, देन आपको मैं इसको समझाऊंगा भी कैसे। लुक, antibody, what is the structure of this antibody? Before explanation of the antibody, you should know the antibody is also known as immunoglobulin। तोड़ दीजिए इसको, immunoglobulin, immuno I, globulin G, IG, immunoglobulin। इम्यूनो मीन्स सुरक्षा तंत्र, ग्लोब्यूलिन मीन्स प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे बॉडी में सुरक्षा दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और एक लाइन और भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल द इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, जितने भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं, दे आर एंटीबॉडीज, बट ऑल द एंटीबॉडीज आर नॉट इम्यूनोग्लोब्यूलिन। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है। टैग लाइन है मेरी, सपना डॉक्टर बनने का। आई विल हेल्प यू, बट करना आपको है। आपको सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है। और ये बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली एक बार देख करके याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, और इसके अपर रीजन को मैंने यहाँ दिखाया है। कैसे? एक एक पॉइंट आप समझिएगा। पहला, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडीज पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ए सिंगल एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उसमें से मेरे हाथ के इशारे को समझिएगा। 1, ये अंदर वाला देखिए, अंदर वाला दोनों, ये बड़ा दिख रहा है ना आपको, लॉन्ग दिख रहा है। 2 इज लॉन्गर चेन, 2 इज लॉन्गर, नोन एज हेवी चेन, रिप्रेजेंटेड बाई H2। H मतलब हेवी, 2 मतलब 2 है। और बाहर देखिए, आउटर साइड में देखिए, ये शार्टर चेन है, ये छोटा है, और छोटा है इसका मतलब क्या हो गया? लाइट। लाइट मीन्स हल्का, लाइट चेन रिप्रेजेंटेड बाई L2। बस इसी में पूरी कहानी खत्म हो जाती है, बाकी नहीं सोचना है। क्या? अरे भाई कहाँ देख रहे हो? इधर देखो ना, इसमें कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से बना है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, जिसमें 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन है। हेवी चेन एंड लाइट चेन, heavy chain H2, light chain L2, that's why the formula is H2L2। अगर एंटीबॉडीज का फार्मूला कोई पूछे तो क्या आंसर होगा? सिंगल एंटीबॉडी H2L2 से रिप्रेजेंट होती है। थोड़ा और पॉइंट्स को आगे बढ़ाइए। क्या? दोनों हेवी चेन, बोथ हेवी चेन ज्वाइंड टुगेदर, जुड़ा हुआ है बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। अरे भाई देखो, SS डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस एक एंटीबॉडी में जो 4 पेप्टाइड चेन से बना है, उसकी 2 हेवी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है, एक हेवी चेन और एक लाइट चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है। यहाँ भी एक हेवी चेन और एक लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है।
मीन्स ये पूरा एंटीबॉडीज हेवी एंड लाइट ज्वाइंड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब पोलैरिटी थोड़ा याद करिएगा, जो इसके ऊपर है ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। अपर पार्ट को एन टर्मिनल और लोअर पार्ट को सी टर्मिनल कहते हैं। जो एन टर्मिनल होता है वह NH3 प्लस होता है और सी टर्मिनल COO माइनस होता है। यह एक्चुअल में एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जो डाईपोलर चार्ज को दिखाता है, ज्यूटर आयन फॉर्म को दिखाता है। तो ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, नीचे क्या हुआ? निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। अब अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि इस एंटीबॉडीज में, ये पूरा एंटीबॉडीज है, इस एंटीबॉडीज में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट एन टर्मिनल पर पाई जाती है। हुई ना बात एकदम पत्ते की, कि एंटीजन बाइंडिंग साइट सी टर्मिनल पर नहीं होगी। कहाँ होगी? एन टर्मिनल पर। और इस एन टर्मिनल पर ऊपर की तरफ दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन में, जैसे ये हेवी और ये लाइट चेन में चेंज हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये रीजन वेरिएबल रीजन कहलाता है। तो वेरिएबल रीजन कहां पर है? एन टर्मिनल के पास में है, ऊपर यहां ऊपर एन टर्मिनल के पास में वेरिएबल रीजन है। और वेरिएबल रीजन में क्या प्रेजेंट है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। और उसके नीचे आप आएंगे तो कांस्टेंट रीजन मिलता है, जहां की एंटीबॉडीज में कोई चेंज नहीं होता। तो कोई आपसे पूछे कि एंटीबॉडीज में चेंज कहां पॉसिबल है, तो आंसर क्या आपका होना चाहिए? एंटीबॉडीज में एन टर्मिनल के पास में चेंज पॉसिबल है, जहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। यह वेरिएबल रीजन है और ये सब क्या है? कांस्टेंट रीजन है। एंटीबॉडी का फार्मूला क्या है? H2L2। एक एंटीबॉडीज कितने पेप्टाइड चेन से बनी है? 4। लाइट चेन की संख्या 2, हेवी चेन की संख्या 2। फार्मूला H2L2। रीजन कितने? 2, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन किस टर्मिनल पर? एन टर्मिनल पर। और कांस्टेंट रीजन किस टर्मिनल पर? सी टर्मिनल पर। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां प्रेजेंट है? तो एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है एन टर्मिनल पर। क्यों ये वेरिएबल है? तो यहां आप देखिए ना इसको, इस स्ट्रक्चर को, जैसे ये ऊपर वाला एन टर्मिनल का रीजन था, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। इस साइज का अगर कोई एंटीजन आएगा, मतलब ये मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई पैथोजन है, एंटीजन का मतलब नुकसान पहुंचाने वाला ही तो है, ये एंटीजन होगा। तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि हर एंटीजन की अपनी एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट्स होती हैं, जिस साइट्स को ये एंटीबॉडीज पकड़ लेते हैं। तो मान लो कि ये एंटीजन है और इसकी ये साइज है, तो इस साइज के अनुसार ये चेंज हो जाएगा और इसको पकड़ लेगा कि अब एंटीजन भागने ना पाए। नहीं तो ये तो भाग जाएगा ना। अब भाग जाएगा तो रोग उत्पन्न करेगा। तो इसका काम है कि नहीं, तुमको जाने नहीं देंगे, रोकेंगे। लेकिन अगर मान लो इससे भी छोटा आ गया तो फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा और छोटा करके इसको पकड़ लेगा। और बड़ा आ गया तो ये और बड़ा हो जाएगा, इसको और बड़ा करके पकड़ लेगा। मीन्स इस वेरिएबल रीजन में एंटीजन के अनुसार चेंज हो सकता है और एंटीजन को पकड़ना इसका काम है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन बोलते हैं। ये कंडीशंस इसकी होती है। तो एक एंटीबॉडीज के इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं जिसको कि आप समझ लेंगे तो ये कंप्लीट हो सकता है। क्या भाई? वो सब डिपेंड आप ही के ऊपर करना है। मैं तो पूरी तरह से फोकस कर रहा हूं कि ये एंटीबॉडीज के टाइप्स कितने होते हैं, ये टाइप्स कितना होता है। तो आंसर है कि एंटीबॉडीज के टाइप्स को याद करने के लिए एक शब्द याद करना पड़ेगा, एक वर्ड, और वह वर्ड है गेम्ड। इसको दिमाग के थ्रू भी लोग बहुत याद करते हैं। दिमाग, DEMAG। और आप इसको दिमाग के थ्रू भी याद कर सकते हो या दूसरा शब्द याद कर सकते हो, गेम्ड।
GAMED, गेम्ड। दिस इज द ट्रिक्स, ये ट्रिक्स है याद करने की। अब गेम्ड से क्या मतलब है, तो ये देखो G लिखा है ना, तो G का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या IG, तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो देखिए IG और डैश ये G कर देंगे IgG, ये हुआ। A को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई, तो IG तो लिखेंगे ही लिखेंगे IgA। M को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे IgM, ऐसे। E को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो IgE लिखेंगे। और D को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे IgD लिखेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज, आंसर है कितना, 5 टाइप्स। और देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने इसको याद कर लिया। और वर्ड क्या था, गेम्ड। क्या वर्ड था, गेम्ड, GAMED। कैसे याद किया, G है तो IgG, A है तो IgA, M है तो IgM, E है तो IgE, D है तो IgD। ये हम क्यों इस क्रम में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपको एक बात दिमाग में हो जानी चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। हमारे शरीर में मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडीज़ क्या होता है, G होता है। एंड दैट इज़ अबाउट 80%। कितना, 80%। अरे बाप रे, ये लगभग कितना होगा, 80% के होगा, ये सबसे ज़्यादा हुआ। इससे कम A होता है, ये कितना होता है भाई, तो 10 to 15% ये होता है, तो कम हो गया। M IgM कितना होता है, 5 to 10%, ये इससे भी कम हो गया। तो 80% IgG, 10 to 15% IgA, 5 to 10% IgM और IgE जो होता है, और ये देखिए 1 2 याद करना, 0.1%, इसको ऐसे याद करिएगा। और D 1 2 इतने तक याद रखिएगा ऐसे, फिर 1 2 कर दीजिएगा, तो ये जो 0.2%। सबसे ज़्यादा IgG, इससे कम IgA, सबसे कम IgM और उससे भी कम IgE 0.1, IgD 0.2। तो कहने का मतलब आता है कि आप एक एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके टाइप्स के नाम याद रख जाइए। गेम्ड GAMED, कौन कितना होता है, कितने तरह का होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। इसके बाद जब हम आएंगे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास मिलेगा, लेक्चर ऑनलाइन प्लेटफार्म है और मेरा कोशिश है कि हम आपको नीट के हर एक पॉइंट को इतना क्लियर बता दें कि एक वीडियो देखने से ही तब भी क्वेश्चन 360 मतलब 360, उसमें कुछ भी कम ना हो बायोलॉजी में। तो ये करेंगे। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी मैं ऐड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि इनका फंक्शन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, CMIS। होप गाइस all of you well understand about this concept and wait for the next lecture which will be extend shortly, will include the different properties of different immunoglobulins and the detailed description with short mnemonics of CMIS। अभी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें एंड वेट करिए सेकेंड लेक्चर का, जो बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाला है। आप में से जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप टाइम निकाल करके इसे देख सकें। ओके स्टूडेंट्स, द एंड ऑफ लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, till bye।